Good morning all my dear students. In our previous chapter we have discussed about the acid base, the basic terms, and about the physical properties of acids and moreover the chemical properties of acids we are already discussed in our previous chapter. So today in this very chapter we will discuss about some more concept of acids. So our first topic is that what do all acids have in common? मीन टू से सभी एसिड्स के बीच में मीन सभी एसिड्स के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबके अंदर कॉमन होती है. सी इन आवर फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स वी हैव डिस्कस्ड दैट द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल. व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड इन दैट रिएक्शन? We have observed that when acid react with any metal it gives the formation of hydrogen gas, and moreover we have confirmed also that how we can identify that the gas which is releasing during the reaction is hydrogen gas. See how we have identified that. हमने simply क्या किया था, we took some acid and we have to add some amount, some magnesium ribbon we add in that, and as the gas is releasing during the reaction we just bring the burning candle or burning matchstick near the mouth of the test tube and it was giving the pop sound. We have observed already this. ये एक्टिविटी हम कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर. तो उससे हमें क्या प्रूव हुआ कि जैसे हम किसी एसिड के अंदर कोई भी मेटल रिएक्ट करवाते हैं तो ड्यूरिंग दैट क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है. तो उससे हमें क्या प्रूव होता है, दैट मीन्स जितने भी हमारे पास एसिड्स हैं इन ऑल एसिड हाइड्रोजन आयन्स इज कॉमन. कि जो हाइड्रोजन आयन है हमारे पास वो कॉमन होते हैं, वो सबके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. सो सी हियर, सपोज आई हैव HCl. As I'll mix it with water, it will give the formation of H plus ion and Cl negative ion. अब हमें पता है कि that H plus ion, this hydrogen ion can't exist so much long. ज़्यादा टाइम तक ये अपने आप को एग्जिस्ट नहीं कर पाता. सो इन दैट केस ये क्या करता है, अपने आप को वाटर के साथ कंबाइन करता है एंड इट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव प्लस क्लोरीन नेगेटिव. Means all acids have hydrogen plus ions common in them. तो एक और बात हमारे पास यहाँ पर सामने आती है. Suppose we have many chemical formulas. Suppose I have here one is H2SO4, C2H5OH. Now tell me, one formula is this, one is this. H is present in this formula also and H is present in the second one also, as it is the alcohol we can say. अब ये सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर भी प्रेजेंट है, अल्कोहल के अंदर भी प्रेजेंट है. तो क्या हम अल्कोहल को इसको भी मान सकते हैं कि ये भी एक एसिड है? ऑफ कोर्स नो. वाई? बिकॉज हमारे पास अल्कोहल के अंदर ये वाटर के अंदर मिक्स होके आयोनाइजेशन नहीं करता, H प्लस आयंस नहीं देता. जबकि जो एसिड्स हैं हमारे H2SO4 है, HCl, HCN, जितने भी एसिड्स हैं all acids gives us the hydronium ion or we can say hydrogen ion. So how we can identify? Suppose we have 3 or 4 formulas and in all those formulas आपको क्वेश्चन आ जाता है that identify which is acid or which is not, कि किस चीज़ को उसमें से आपको एसिड काउंट करना है, कौन सा उसमें से एसिड नहीं है फॉर्मूलाज के अंदर. तो उसके बेस में हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंटली हम उसको प्रूव कर सकते हैं. हाउ वी कैन प्रूव दैट? विल टेक अ कंटेनर. हम 2 कंटेनर यहाँ पर लेते हैं. इन वन वी हैव टू फिल द अल्कोहल. सपोज इट इज अल्कोहल एंड इन दिस H2SO4. H2SO4. Then insert a rubber cork in both the container and then keep some iron nails into it. Insert like this in rubber cork in both the solution and then attach a wire through it like this. Here we will attach a bulb
Same thing we will do here also. Attach a bulb here. It's positive and it's negative. Positive and negative. It is bulb. It is the iron nails. It is switch and it is our battery. Same thing in this container also, but where is the difference? Only solution का हमारे पास difference है. इस वाले कंटेनर में हमने क्या लिया है, H2SO4 को लिया है एंड इन दिस कंटेनर वी हैव अल्कोहल. दोनों का सेटअप हमारा कंप्लीट सेम है. ओके, सो हाउ वी हैव टू स्टार्ट. एज वी विल स्विच ऑन, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं इन बोथ द केसेस. इन फर्स्ट केस में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमने बल्ब लगाया था यहाँ पर इट विल स्टार्ट टू ग्लो, बट इन दिस केस बल्ब विल नॉट ग्लो. सो व्हाट इट इज़ प्रूविंग, इट इज़ शोइंग दैट the H plus ion is formed only in this case, not in this case. That means जो अल्कोहल है हमारा it is not the good conductor of electricity. Moreover ये हमें हाइड्रोजन प्लस आयन की फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, जबकि जो फर्स्ट केस है हमारे पास it is giving the formation of hydrogen plus ion, and due to the formation of hydrogen plus ion it is conducting the electricity and that's why our bulb is ग्लोइंग. तो सिंपली हम ये वाली सिंपल एक्टिविटी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं टू चेक वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर और नॉट. ओके, तो हमारा टॉपिक क्या था, दैट व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, कि सभी एसिड के अंदर ऐसी कौन सी कॉमन चीज़ होती है. तो वो कॉमन चीज़ क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन प्लस आयन है, हाइड्रोनियम आयन भी हम बोल सकते हैं, बिकॉज जितने भी हमारे पास एसिड हैं आफ्टर मिक्सिंग इनटू द एक्वस सॉल्यूशन और वी कैन से वाटर, दे ऑलवेज गिव द फॉर्मेशन ऑफ अ कटायन एंड अनायन, एंड दैट कटायन इज द हाइड्रोजन प्लस आयन. ओके, सो नाउ वी कैन सी, वी विल राइट द एग्जाम्पल ऑफ एसिड्स वन बाय वन. HCl we have done already. HCl plus water, जब हम HCl को वाटर में ऐड करते हैं तो इट विल गिव द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन. सपोज वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड, आफ्टर मिक्सिंग इनटू वाटर इट विल गिव द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्लस सल्फेट. सपोज वी हैव एसिटिक एसिड CH3COOH plus water, it will also give the formation of hydronium ion plus CH3COO negative ion. Suppose one more example we have HCN, it will give the formation of same. With water you have to do the reaction, H3O positive plus Cn नेगेटिव. सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि एवरी एसिड आफ्टर मिक्सिंग विद वाटर इट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन, मीन्स H प्लस आयन का फॉर्मेशन देता है. बट वी नो दैट ये जो हमारे पास हाइड्रोजन प्लस आयन है इट कांट एग्जिस्ट लॉन्गर, ज़्यादा टाइम तक ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता और बड़ी जल्दी ये क्या होता है अपने आप को वाटर के साथ कंबाइन करके इट गिव द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन H3O positive ion. So now we will do the next topic, that what is the role of water in acidic character of acid, कि हमारे वाटर का मेन रोल क्या है एसिड्स के एसिडिक करैक्टर को शो करने में. रोल ऑफ वाटर in acidic character of water, acid, मीन्स एसिड के एसिडिक करैक्टर को शो करने में हमारा वाटर का क्या रोल होता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर. सी फॉर दिस वी हैव टू डू सिंपली एन एक्सपेरिमेंट.
सी हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक अ कंटेनर एंड वन मोर वी विल टेक. In both the cases we have to add a mixture of sodium chloride and sulfuric acid. In this container also, इसके अंदर भी हमें क्या ऐड करना है, we have to add sodium chloride plus sulfuric acid. See, when sodium chloride react with sulfuric acid, it gives the formation of HCl and sodium sulfate Na2SO4. दैट मीन्स यहाँ से क्या रिलीज होगा, HCl, एसिड गैस. HCl हमारा गैसेस के फॉर्म में यहाँ से रिलीज होगा. हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ अ डिलीवरी ट्यूब वी हैव 2 लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर हमें लेने हैं. वी हैव 2 ब्लू लिटमस पेपर. First of all, we will check it with dry blue litmus paper. Second को हमें चेक करना है with wet blue litmus paper. See, we have 2 container, first one and second one. In both the cases जो हमारे पास कंपाउंड है, जो केमिकल कंपाउंड हमने ऐड किए हैं, बोथ आर सेम, सोडियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड को हमने ऐड किया है. एंड आफ्टर एडिंग सोडियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इट ऑलवेज गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस वहाँ से रिलीज होगी, प्लस सोडियम सल्फेट फॉर्मेशन विल बी देयर इन बोथ द केसेस. नाउ व्हाट इज द मेन क्वेश्चन, एक को हमें चेक करना है, गैस दोनों में से ही रिलीज हो रही है. ऐसा नहीं है कि दैट गैस इज रिलीजिंग इन द सेकंड कंटेनर बट नॉट इन द फर्स्ट वन. इन बोथ द केसेस गैस इज रिलीजिंग. ओके, फर्स्ट केस में हमें गैस को चेक करना है ड्राई ब्लू लिटमस पेपर से. हमें पता है कि जो एसिड है हमारे वो ब्लू लिटमस पेपर को टर्न कर देता है रेड कलर में. बट हेयर नो चेंज इज देयर. वाई? बिकॉज लिटमस पेपर क्या है हमारा, ड्राई है. सेकेंड में क्या है, वेट. हमारा जो ब्लू लिटमस पेपर है हमने उसको थोड़ा सा वेट कर लिया, गीला कर लिया थोड़ा सा वाटर के अंदर. और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जैसे ही कंटेनर के अंदर से गैस रिलीज हुई है, द ब्लू लिटमस पेपर टर्न इनटू द रेड लिटमस पेपर. ओके, तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा. तो यहाँ से हमें क्या प्रूव होता है, दैट मीन्स हेयर कलर विल चेंज एंड इन दिस केस नो चेंज इज देयर. तो यहाँ से हमें क्या प्रूव हुआ कि जितने भी हमारे एसिड्स हैं ये अपने एसिडिक करैक्टर को केवल एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही शो करते हैं, अदरवाइज ये अपने एसिडिक करैक्टर को आइडेंटिफाई नहीं करते. इनकी जो आइडेंटिटी है वो लॉस्ट रहती है विदाउट द एक्वस सॉल्यूशन, मीन्स वाटर की प्रेजेंस में ही ये अपने एसिडिक करैक्टर को शो कर पाते हैं. ओके, सो इट वॉज अ सेकेंड टॉपिक. सो देर इज on the basis of this hydrogen plus ion there is a definition of acid, another definition. As earlier we studied only the normal basic concept of acid, that acid is a sour in taste and it turns blue litmus paper or blue litmus solution into red. Here we will read a definition of acid which is according to the Arrhenius concept. See, Arrhenius concept of acids. Arrhenius के अकॉर्डिंग एसिड की डेफिनेशन हमारे पास है क्या है. सी, अभी हमने फर्स्ट वाले दोनों ही टॉपिक में ये पढ़ा दैट व्हाट इज द कॉमन थिंग इन ऑल एसिड्स. सारे एसिड्स के अंदर कॉमन चीज़ क्या प्रेजेंट होती है, दैट कॉमन थिंग इज द हाइड्रोजन प्लस आयन और वी कैन से हाइड्रोनियम आयन. ओके, तो उसी के बेस पे आर्हेनियस ने हमें एसिड की डेफिनेशन दी है. उसके अकॉर्डिंग क्या है, दैट एसिड्स आर those substance which dissociate into aqueous solution, which dissociate into aqueous solution
टू गिव हाइड्रोजन आयन means H plus ion, or we can say hydronium ion also. मीन्स आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो हमारे एसिड की डेफिनेशन है वो क्या है कि एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस है जो वाटर के अंदर मिक्स होने के बाद हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, इट गिव्स हाइड्रोजन आयंस मीन्स H प्लस आयन जो हमें दे, दैट इज द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स. If we talk about the classification of acid, acids are of two types, that is strong acid and weak acid. See, what is strong acid? Strong acids are those acids in which acids are ionized completely into the aqueous solution, or we can say in water. जहाँ पर हमारे एसिड वाटर के अंदर मिक्स होने के बाद completely आयोनाइज हो जाएं, completely H प्लस आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं, that means those acids are the strong acid. And what is weak acid? Weak acids are those acid which is partially ionized, or we can say which ionized to small extent is called the weak acid. मीन्स जब उनको हम वाटर में ऐड करें, इस केस में हमें क्या मिलेगा, जो एसिड होगा वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा H प्लस आयन के अंदर, और जो इस केस में है कुछ अमाउंट में हमारा एसिड एज इट एज फॉर्म में पड़ा रहता है, केवल हमें स्मॉल एक्सटेंट तक ही हाइड्रोजन प्लस आयन वहाँ पर प्रेजेंट होते हुए हमें मिलते हैं. दैट मीन्स दोज एसिड्स आर नोन एज द वीक एसिड्स. सो लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस. See what is strong acid? The acids which are completely ionized into water is called strong acid. Likewise, we can write the definition of weak acid. The acids which ionized partially, or we can say to small extent, in water is called weak acid. So let me write some example. In strong acid mainly we have three main acids in case of strong. If we talk about, it is HCl, H2SO4 and nitric acid. See, when we mix it into water, it gives the formation of hydronium ion plus Cl negative. Same if we mix sulfuric acid into water, it will give the formation of hydronium ion plus sulfate. If we talk about HNO3, it is, add water here, H3O positive ion plus NO3 negative. Okay, see beta here, the single arrow pointing towards the right hand side, it shows that द आयोनाइजेशन ऑफ एसिड इज़ कंप्लीट. मीन्स जो आयंस का फॉर्मेशन है वो कम्प्लीटली इसके अंदर कन्वर्ट हो गया है. बट इन दिस केस जो हम वीक एसिड के अंदर फॉर्मेशन करते हैं, इन दिस केस 2 एरोज आर देयर, और जो 2 एरोज हमारे पास वहाँ पर हैं इरिवर्सिबल की फॉर्म में, वो क्या शो करते हैं, दैट कंप्लीट आयोनाइजेशन हमारा नहीं हुआ है. आयोनाइजेशन इज to the small extent, or we can say partially ionization is there. So some example, like if we talk about acetic acid, if we mix it with water, see always you will find the arrows like this. डबल एरो आपको दिखेंगे वीक एसिड की फॉर्म में, और इस डबल एरो का मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन प्लस आयन आयोनाइजेशन जो है हमारी, दैट इज़ नॉट कंप्लीट. वो कम्प्लीटली आयोनाइजेशन नहीं हुआ, कुछ इसी फॉर्म में पड़े हैं,
कुछ आयोनाइज हो गए हैं। यहाँ पर सिंगल एरो क्या शो कर रहा है, दैट इट इज़ कन्वर्टेड और आयोनाइज कम्प्लीटली इन दिस फॉर्म, हाइड्रोजन आयन उसने फॉर्मेशन कर दिया है। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है। इट विल गिव द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम प्लस आयन प्लस CH3COO नेगेटिव, कार्बोनिक एसिड H2CO3, hydrogen cyanide HCN. Likewise you can do the example and same we have to put the same ion, and they will also give the formation of hydronium ion plus the cyanide. In this case also hydronium ion plus carbonate. Okay, likewise you can write H3O positive plus CO3 2 negative, same thing, hydronium ion plus cyanide CN negative. Mix water in both the acid. So these are the two types of acid on the base of hydrogen ion, ionization of hydrogen ion. आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा एसिड क्या होता है, जहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होने के बाद वो किस चीज़ में डिसोसिएट हो जाए, हाइड्रोजन आयन के अंदर। ओके, एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, विच आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। वीक एसिड कौन से हैं, विच आर पार्शली आयोनाइज्ड इन वाटर। ओके, सिंपल याद रखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड के हमारे पास ओनली 3 एग्जाम्पल्स वी हैव, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड nitric acid. And if we talk about the weak acid, these are the some general examples of strong and weak acid. Okay, so this topic is completed. Now we will discuss about the concentration of acid. I just want to tell you one more thing about it. See, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है about the strong acid and weak acid. There is one more concept that about the concentration of acids. Hope so you all are aware about the word concentration of acid. We know 2 words we have. One is concentrated and diluted. Suppose we have 2 type of acids. कंसनट्रेटेड एसिड मीन टू से जहाँ पर वाटर का अमाउंट या तो बिल्कुल स्मॉल हो या फिर वाटर बिल्कुल प्रेजेंट ना हो, ओनली एसिड इज देयर, दैट इज द कंसनट्रेटेड एसिड. डाइल्यूटेड एसिड इन विच वाटर इज मोर बट एसिड इज लेस. ओके, यहाँ पर क्या होगा, आई हैव टू राइट हियर स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड होगा और ना भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वाटर हमने बिल्कुल ही उसमें ऐड नहीं किया. सेकेंड थिंग अबाउट डाइल्यूटेड एसिड. डाइल्यूटेड का मतलब ही क्या होता है कि वाटर के साथ हम हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दें. तो यहाँ पर क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर देन एसिड. सी, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड के बेस पे आपको देखना है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है. सपोज हमारे पास है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, लाइक HCl हमारे पास है डाइल्यूट अमाउंट में, और एसिटिक एसिड है हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड. और दोनों में से आपको कोई पूछ ले कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन किस में ज़्यादा होगी, तो इन दैट केस आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें तो वाटर ज़्यादा है, ये तो डाइल्यूट है ऑलरेडी, इसके अंदर कम होगा. नो, इट इज़ नॉट करेक्ट. वाई कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे, वेदर इट इज़ डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड. सेम थिंग हेयर, जो हमारा एसिटिक एसिड है, वी नो दैट एसिटिक एसिड इज द इन द कंसनट्रेटेड फॉर्म हेयर. तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये कंसनट्रेशन के फॉर्म में है, कंसनट्रेटेड है, एसिड का अमाउंट इसमें ज़्यादा है, दैट मीन्स ये हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन ज़्यादा देगा. नो, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है. आपको सिर्फ माइंड में एक ही चीज़ रखनी है, जो एसिड्स वीक हैं वो वीक ही रहेंगे, उनकी हाइड्रोजन आयन देने की जो कैपेसिटी है वो कम ही होगी, बिकॉज वो कंप्लीट आयोनाइज नहीं कर पाते. और जो एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग है,
चाहे वो डाइल्यूट हो चाहे वो कंसनट्रेटेड हो, हाइड्रोजन आयन देने की जो उनकी कैपेसिटी है वो ऑलवेज ज़्यादा ही रहेगी। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो एसिड स्ट्रॉन्ग है दे विल ऑलवेज स्ट्रॉन्ग ओनली, जो हमारे पास वीक हैं वो वीक ही रहेंगे, चाहे वो डाइल्यूट हो चाहे वो कंसनट्रेटेड की फॉर्म में हो, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कि किसके अंदर ज़्यादा बन रही है। हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा अमाउंट में बनता है, कंप्लीशन में बनता है, और जो हमारे पास वीक एसिड है, वीक एसिड के केस में हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन कम्प्लीटली नहीं होती, दे आर नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड मोर ओवर, सो दैट्स वाई। तो आपको यहाँ पर माइंड में एक चीज़ को रखना है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं दे ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, जो वीक एसिड हैं दे ऑलवेज वीक, वेदर दे आर कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द मिक्सिंग ऑफ acid into water, or simply we can say dilution of acids, dilution of acids, dilution of acids mean to say एसिड के अंदर वाटर को मिक्स कर देना। अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, दो तरीके हैं हमारे पास कि या तो हम एसिड के अंदर वाटर को ऐड कर दें या फिर वाटर के अंदर एसिड को ऐड कर दें। हमें पता है कि जो डाइल्यूशन ऑफ एसिड है इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। व्हाट इज एक्सोथर्मिक? नाउ इन आवर प्रीवियस चैप्टर द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस टर्म एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मीन टू से outside, thermic mean to say heat and temperature we can say, in which heat energy is released during the reaction, that reaction is known as the exothermic reaction. Here I am saying that the dilution of acid is also a highly exothermic reaction. Okay, आपको इसका पता कैसे चलेगा? इसका मतलब क्या है कि जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है। ओके, सो हमें कैसे पता चलेगा कि जो डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स है वो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? इसकी बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमारे पास दो मेथड है। आप ये हमारे पास कोई भी कंटेनर है, फर्स्ट में हमने लिया वाटर, सेकंड में हमने लिया एसिड। इसमें क्या है? एसिड, एंड इन दिस केस इन दिस कंटेनर वाटर। एक अनदर बीकर हम ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज वी आर एडिंग हेयर, कोई दूसरा बीकर है सपोज ये हमारे पास। इन दिस एसिड सेम थिंग वी कैन डू हेयर, अनदर बीकर हमने लिया है, एंड इन दिस बीकर वाटर इज देयर। वी हैव टू केसेस। फर्स्ट केस में हमने क्या है, एक कंटेनर में वाटर है, इसके अंदर एसिड है। पहले में क्या हमें दिखाई दे रहा है कि वाटर के अंदर हम एसिड ऐड कर रहे हैं। सेकंड में क्या दिख रहा है कि एसिड के अंदर हम वाटर को ऐड कर रहे हैं। विच मेथड इज करेक्ट टू डाइल्यूट द एसिड? ऑब्वियस दिस मेथड इज करेक्ट। हमें क्या करना है, कभी भी आपको एसिड के अंदर वाटर ऐड नहीं करना है, बिकॉज वी नो ऑलरेडी दैट द डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ब्लास्ट कैन बी देयर, वहाँ पर ब्लास्ट हो सकता है और कोई भी आपको हार्मफुल इंजरी हो सकती है। सो इट इज़ द wrong method. What is the correct method? It is correct method. Always whenever you need to dilute the acid, always you have to add acid into water, and side by side you need to swirl the vessel. ओके, साथ साथ आपको उसको शेक भी करते रहना है। ड्रॉप बाय ड्रॉप यू हैव टू ऐड योर एसिड इनटू द वाटर एंड देन यू हैव टू मिक्स इट, शेक इट वेल, ताकि हमारी जो ब्लास्ट होने के चांसेस हैं वो कम रहें। Okay, so our first method is the correct method during the dilution of acids. So bete our topic of acid is almost complete. Now we will discuss about the physical and chemical properties of bases. As some physical properties we have discussed already, as we have discussed the physical properties of acids, likewise we need to discuss the physical properties of bases also.
in case of acid we discussed around 4 chemical properties of acid. In this case also some properties are same like the acid. So first of all, write the physical property of acid. We have discussed already that what is base. Bases are bitter in taste and they turn red litmus solution into blue litmus solution. So उसको हम क्या है एक physical property के अंदर भी हम ऐड कर सकते हैं. So our first point is that bases are bitter in taste. वो टेस्ट में कड़वे होते हैं थोड़े. So bases are bitter in taste. Second thing, bases are slippery in touch or we can say that soapy in touch. कि जब हम लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमारे पास पैलेट हैं, व्हेन वी हैव टू टेक एनी 1 or 2 पैलेट इन अ हैंड एंड व्हेन वी रब इट लाइक दिस, आफ्टर सम टाइम हमें क्या फील होता है जैसे सोप के हम जैसे सोप को टच करने से हमें फील होता है. सेम फीलिंग वी हैव टू डू लाइक इन केस ऑफ बेसिस ऑल्सो. सो दैट मीन्स बेसिस आर slippery in touch. Third property we can write that basis turns the red litmus solution into blue. सेम आप यही वाली प्रॉपर्टी के अंदर सेम आप इसका एग्जांपल फिनोल्फ्थैलिन के साथ भी लिख सकते हो. वी नो दैट इन केस ऑफ फिनोल्फ्थैलिन द बेसिस टर्न इनटू द पिंक कलर. वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पिंक कलर के अंदर. इफ वी टॉक अबाउट मिथाइल ऑरेंज देयर इज नो चेंज, कलरलेस विल बी देयर. तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो. और फोर्थ प्रॉपर्टी इज बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर. कोरोसिव मीन टू से हार्मफुल होते हैं. फिफ्थ बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. And sixth one, as we have discussed in case of acid also, as acid react with metal and they give the formation of hydrogen gas, same thing here also, bases also when react with the metal it gives the formation of hydrogen gas, and we can check the formation of hydrogen gas by the same method as we have done the experiment in case of reaction of acids with metal to check the hydrogen gas. Okay, so our now last property is bases react with metal to form hydrogen gas. So these are the physical properties of bases. Our first property is bases are bitter in taste, bases are slippery in touch, they can turn the red litmus solution into the blue litmus solution, they are corrosive in nature, they are good conductor of electricity, and last one is when bases react with any metal they always give the formation of hydrogen gas. Okay, so these all are the physical properties of bases. Now we will discuss about the chemical properties of base. Chemical properties of base. See, in case of acids we have discussed about the 4 chemical properties. Our first chemical property was that the reaction of acid with metal, same reaction we will read here, that reaction of base with metal. Our first is reaction of base with
metal. And we know that when base react with metal, it gives the formation of a salt and hydrogen gas. So right here any base, suppose sodium hydroxide is there, and we can take a metal like we have taken zinc, and it's very important reaction because we know that in case of reaction of base with metal, जनरली सभी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, एंड दिस इक्वेशन इज गिवन ऑलरेडी इन आवर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. ओके, when sodium hydroxide react with zinc, it gives the formation of sodium zincate, Na2 ZnO2. It is sodium zincate, and plus hydrogen gas is released during the reaction. Secondly, one more reaction, NaOH plus, when it react with water and with some amount of water, it gives the formation of sodium aluminate, NaAlO2 plus hydrogen gas is released during the reaction. You can balance it. If it is not balanced, you can balance this one also. Write here simply 2. See, now our reaction is balanced. It is the sodium aluminate. What it is? It is sodium aluminate. You need to learn only these two reactions in case of reaction of bases with metal, because we know that generally all metals can't react with base. It is given already in our NCERT book. दिस ऑल्सो सिंपली भी आपको माइंड में रखना है कि ओनली जिंक और एल्यूमिनियम की आपके 10th स्टैंडर्ड तक जो हमारे पास हैं कि बेस की मेटल के साथ रिएक्शन में केवल जिंक और एल्यूमिनियम के अलावा आपके पास नहीं आएगा. इफ वी टॉक अबाउट द बोर्ड एग्जाम. ओके, तो सिंपली आपको जिंक और एल्यूमिनियम के बारे में ही पढ़ना है, एंड इट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ है. हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, हाउ यू कैन चेक. सेम एक्सपेरिमेंट हम रिपीट कर सकते हैं फर्स्ट वाले की तरह कि हमें सिंपली क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेनी है. टेस्ट ट्यूब में बेस को ऐड करना है. आफ्टर एडिंग बेस, सी सपोज आई हैव अ टेस्ट ट्यूब हियर, एंड इन दिस बेस हमने ऐड किया NaOH. उसके बाद जिंक के ग्रैन्यूल हमने इसमें ऐड कर दिए प्लस जिंक ग्रैन्यूल. जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जिंक ग्रैन्यूल ऐड करते हैं, देयर इज़ अ इवोल्यूशन ऑफ गैस. गैस रिलीज होनी स्टार्ट होगी. तो गैस जो रिलीज होगी हमारी अपसाइड जाएगी. हमें क्या करना है, बर्निंग मैचस्टिक या बर्निंग कैंडल आपको सिंपली क्या करनी है, जस्ट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. अगर वो जो हमारी बर्निंग कैंडल या मैचस्टिक है एक पॉप साउंड को प्रोड्यूस करे और धीरे धीरे क्या है, लाइट गोज ऑफ, दैट मीन्स द गैस विच इज रिलीजिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन, दैट गैस इज हाइड्रोजन गैस. ओके, तो ये क्वाइट सिंपल मेथड है. मैनी टाइम्स क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस concept that how you have to identify that the gas which is released during the reaction is hydrogen gas. आप उसको कैसे प्रूव करोगे कि जो गैस आपकी निकल रही है, इवोल्यूट हो रही है, वो हाइड्रोजन गैस ही है. ओके, so it was our first property. Second is reaction of base with metal. Reaction of base with acid. This already we discussed in case of acid also. Reaction of acid with base, that means product formation same होगा. And what was that reaction? That reaction was neutralization reaction. See, suppose I have base. When a base react with an acid, it gives the formation of a salt, NaCl, and water formation will be there. water इसके अंदर से remove हो जाएगा. It will give the formation of a salt, sodium chloride, plus water will form, and this reaction is known as the neutralization reaction. Why it is neutralization reaction? Because we know when base react with acid, दोनों ही अपनी अपनी आइडेंटिटी को, दोनों ही अपने अपने कैरेक्टर को लॉस कर देते हैं. मीन जो हमारी इक्वेशन है वो नल हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, एंड आफ्टर बैलेंस इट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. जो हमें सोल्ट और वाटर मिला है, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन.
Okay, so it is a second reaction. You can write 2 or 3 more example you can write if you want to write. Suppose I have potassium hydroxide and sulfuric acid. It will give the formation. Same thing we can do here. Water formation will be removed. You no need to write here like this. Simply write here K2SO4 plus water will be removed during the reaction. So in this case we can't remove water like this. If the reaction is not balanced, in that case you need to balance your equations. Okay, so it is a second chemical reaction. Now we will discuss about the third reaction of bases, and that is the reaction of base with नॉन मेटालिक ऑक्साइड. सेम हमने एसिड के केस में भी पढ़ी थी, दैट द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटालिक ऑक्साइड, बट हेयर वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन मेटालिक ऑक्साइड. नॉन मेटालिक ऑक्साइड. See, when any base, suppose NaOH, react with any non-metallic oxide. Non-metallic mean to say कोई भी non metal like carbon, sulfur, you can take any. Oxide means like CO2, and it will give the formation of a salt and water. Same like the neutralization reaction. Which salt can be formed from here? Sodium carbonate, Na2CO3 plus water. Now see here. जो हमारी रिएक्शन है प्रोडक्ट फॉर्मेशन बिल्कुल सेम है एज इन केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. दैट मीन्स जो हमारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? लाइक एन एसिड. बिकॉज हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने बेस को एसिड में ऐड किया था, तभी हमें सोल्ट और वाटर मिला था. यहाँ पर हमने क्या है, बेस के अंदर नॉन मेटालिक ऑक्साइड को ऐड किया, फिर भी हमें सोल्ट और वाटर मिला है. तो यहाँ से हम क्या आइडिया लगा सकते हैं? दैट मीन्स जो हमारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? इट इज एसिडिक इन नेचर. एसिडिक इन नेचर. वन मोर एग्जाम्पल यू कैन राइट इफ यू वांट. लाइक वी हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. When it react with carbon dioxide, it will give the formation of calcium carbonate plus water. Clear? So these are the physical and chemical properties of bases. Tomorrow again we will start with the new concept of the chapter acid, bases and salts. Till then, goodbye, thank you and have a nice day.